بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، بتائیے ان کا مزار شریف کہاں بنے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، بتائیے ان کا مزار شریف کہاں بنے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، بتائیے ان کا مزار شریف کہاں بنے گا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی جس پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف کہاں بنے گا. لگتا ہے ایسا کہ یہ ان کے فرقے میں آئیں گے اور یہ اسے مزار بنائیں گے، وہاں پہ جو چاہے وہ کریں گے، جس طریقے کا آج مزاروں پہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، کیا واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنے گا اور وہ کہاں پہ بنے گا؟ اس کا جو ہے کمپلیٹلی جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. 8ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امام سے مراد یعنی وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یعنی امام یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے. تو امام ان معنوں میں بھی ہے، ایک امام مادی والے معنوں میں بھی ہے اور اس معنی میں بھی امام آیا کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. البتہ فقہ حنفی والوں نے، شیخ احمد سرندی نے جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. نعوذ باللہ. تو پھر انہیں شرم آئی، انہوں نے کہا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو، یہ مطلب امام حنیفہ کے انڈر ہی دینا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. نعوذ باللہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کریں، فقہ حنفی کے ساتھ جو ابھی تک ہو چکی ہے اور بعد میں جو کچھ ہونی ہے، ٹھیک ہے، امام حنیفہ کے ساتھ نہیں، فقہ حنفی کے ساتھ. تو اس طرح کہ وہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. جب کسی نے کہا کوئی دلیل دیں تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ جو فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے نا، وہی 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں ہوتا ہے. بھئی 100 سال کے مجدد کا ذکر تو ابو داؤد میں حاکم میں موجود تھا، 1000 سال کا مجدد تو کہیں ذکر نہیں ہوا. خود سے کلیم کر دیا. اور پھر اس بندے نے یہاں پہ اپنی زبان نہیں روکی، پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے کمالات دیے ہیں نا، اس کا بہت سا حصہ امام مہدی کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعنی وہ کہتا ہے مہدی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں، اور یہ وہ ہیں جس کو دیوبندی، بریلوی اور بعض اہل حدیث بھی مجدد الافسانی کہتے ہیں. 1000 سال کا مجدد. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ایک طرف بچارے کہتے ہیں میں اختلافی موضوعات پہ امی ہوں، اور دوسری طرف وہ اختلافی موضوعات کے اوپر یہ کچھ بھی کر جاتے تھے. وہ بھی ان کی وہ بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ ان کے اپنے مکتوبات ہیں، ان کے ماننے والوں نے چھاپے ہوئے ہیں. یہ میں نے نہیں ان کی طرف منسوخ کیے. اس بندے کے آپ دعوے دیکھیں. اور مسلم شریف اگر اس نے پڑھی ہوتی تو کبھی یہ جرت نہ کرتا. وہ یہی کہتا کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. 9ویں حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے غزوہ ہند والی، کہ 2 طرح کے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. ایک وہ جو ہند میں جہاد کریں گے. اب یہ غزوہ ہند محمود غزنوی والا، حافظ سعیسہ والا نہیں ہے، یہ قرب قیامت والا ہے. ہاں، اور کیونکہ قرب قیامت میں یہ ہونا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا، اس سے ایڈجسٹنٹ پہلے. اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے. 10ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں معراج کی رات جب میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، تو میں نے دونوں سے قیامت کے متعلق ڈسکشن کی کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی. تو دونوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں. تو کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم نے مجھ سے کہا کہ قیامت کا تو مجھے نہیں پتا کب آئے گی، البتہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے میں دنیا میں نازل ہوں گا اور دجال کو قتل کروں گا. اور وہ سارا جو تفصیل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اس میں موجود ہے. وہ آپ حدیث پڑھ لیجئے گا. نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم امیجز بھی ڈسپلے کرا دیں گے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، میں خود پڑھ لیتا. تو آپ پڑھ لیجئے گا.
11 नंबर हदीस सुनन नबी दाऊद में है और मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम अंबिया जो हैं वो आपस में भाई हैं, लेकिन ईसा इब्न मरियम और मेरे दरमियान कोई और नबी नहीं है, उनके साथ तो मेरा खास रिश्ता है क्योंकि ये फतरत का पीरियड है, यानी हमारे दरमियान कोई और पैगंबर नहीं आया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ईसा इब्न मरियम कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, दज्जाल को कत्ल कर देंगे, सलीब तोड़ देंगे, वही सारे अल्फाज जो बुखारी मुस्लिम में आए। इसमें आगे अल्फाज हैं कि वो 40 साल तक दुनिया में रहेंगे और फिर एंड पे मुसलमान उनका जनाजा पढ़ के उन्हें दफनाएंगे। लेकिन ये नहीं इसमें मौजूद कि कहाँ पे दफनाएंगे, वो आखिरी हदीस 12 नंबर जो तिरमिजी में मौजूद है और मिशकात के अंदर, अब्दुल्ला इब्न सलाम जो एक यहूदी थे और बाद में मुसलमान हुए, यहूदी आलिम थे और सहाबी बने, वो कहते हैं कि तौरात में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारीफ़ें लिखी हैं उनमें से एक ये है कि ईसा इब्न मरियम जब दुनिया में दोबारा आएंगे तो वो फौत होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतर के साथ दफनाए जाएंगे। ये तिरमिजी के अल्फाज हैं। और वो रावी हदीस अबू मौदूद कहते हैं कि एक कब्र की जगह अभी भी बाकी है, और वाकई बाकी है। मैंने जो कब्र रसूल का तारुफ करवाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि नबी अलैहिस्सलाम को यूं दफनाया गया ना, आपका चेहरा अतर जो है वो किबला रुख है, तो आपके ऑलमोस्ट नाफ की सीध में आपके पीछे हजरत अबू बकर की कब्र है और हजरत अबू बकर सिद्दीक की नाफ की सीध में हजरत उमर की कब्र है। यानी ये यूं चलती हैं। जब ये यूं चलती है तो यहां एक कब्र की जगह खाली हो जाती है और वहीं पे ईसा इब्न मरियम को दफन किया जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक को ओवरऑल कवर कर दूं। आखिर में मैं उसी हदीस के ऊपर कंक्लूड करता हूं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि कुर्ब क़यामत में जब ईसा इब्न मरियम आएंगे और मुसलमान और यहूदी आपस में क़िताल करेंगे, तो अगर किसी दरख्त या पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा हो तो वो दरख्त और पत्थर भी बोलेगा, ऐ मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। ये मैदान जंग की बात है, आम हालत में नहीं है, सवाए गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है, वो उन्हें पनाह देगा। तो मैं मुसलमानों को भी दावत देता हूं कि उस दिन से पहले कि आपको या मुस्लिम कह के कोई दरख्त या पत्थर पुकारे और आप ये समझें कि इंजीनियर साहब की कोई वीडियो पीछे चल रही है, क्योंकि हम तो बरेलवी देवबंदी हैं, हम तो मुस्लिम नहीं हैं, ये बात करें तो ये गुस्सा खाते हैं। तो इन्हें कि अगर हो तो मस्जिद में क्यों नहीं लिखते हो मुस्लिम? और उससे बड़ी बात, आप इनके सामने ये आपसे पूछे ना आप कौन है, आप कहें कि मैं मुस्लिम हूं, तो इतना गुस्सा खाते हैं, कहते हैं मैं काफर। लेकिन इनके सामने आप कह देना मैं बरेलवी हूं, तो अगला बंदा कहेगा हाँ मैं देवबंदी हूं। मुस्लिम लफ्ज से चिढ़ देंगे। तो इससे पहले कि आपको वो दरख्त या पत्थर यहूदी के खिलाफ किताल के लिए उभारे या मुस्लिम कह के और आपको पता ही ना चले कि किसे बुलाया जा रहा है, उससे पहले पहले आप ये नारे हक बुलंद कर दें कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। हाँ, यानी इल्म और किताबुल्लाह और सुन्नत के मुताबिक चलने वाला मुस्लिम। ये कोई फिरके का नाम नहीं है और इसकी बुनियाद पे जो ये इस तरह का हंगामा खड़ा करते हैं, भाई फिरकों की चंदा बुक होती है, मदारिस होते हैं, उनके बाबे होते हैं। सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं बाकी सारे जहनमी हैं, हम जनती हैं, हम तो भाई तुम्हें मुसलमान समझते हैं, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, मस्जिद भी लादा नहीं बनाई। देख लेंगे हमने कितनी समझदारी से इस दावत को लॉन्च किया है कि कोई एक गाली जो फिरकों वाली है ना, ये हमें दे नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज ये थी ना, कहते हैं चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे करता है। और मेरे तो YouTube के चैनल की मोनेटाइजेशन की वीडियो एड्स की कमाई इतनी है कि मैं तुम्हारे सारे मौलवी जो है ना 1 महीने में खरीद लूं। अगर ये करना चाहता मैं, तो मुझे किसी से चंदा लेने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने वो वीडियो एड्स ऑन नहीं किए मैं, तो तुम लोगों के चंदों का क्या लेना देना। खैर, ये एक मैंने, चूंकि एक मॉरल लेसन भी हासिल होता है, और दूसरा कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। एक वो दीन है जो किताबों में आया, एक वो है जो बाबों ने बताया। अगरचे बाबे भी इसी खुदा रसूल के मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी तालीमात दी है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो हमारा ये नारा इसीलिए बुलंद हुआ है कि मेरे नबी ईसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।
सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन आमीन। इससे मुतालिक अब जो अहादीस हैं वो मैं बयान कर देता हूँ। 12 अहादीस। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, जो मैंने पहले भी बयान की। कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम तुम में आदिल हुक्मरान की हैसियत से उतरेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे, यानी सब के सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। और फिर हजरत अबू हुरैरा कुरान की आयत पढ़ते थे सूरत निसा की कि अहले किताब में से कोई नहीं बचेगा मगर ये कि उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी जब ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। और उसकी तफसील अगली हदीस में है मुस्लिम शरीफ की। नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक के लिए किताल करता रहेगा हत्ता कि ईसा इब्न मरियम उतरेंगे और मुसलमानों का अमीर उन्हें कहेगा, और यह होगा शाम की सरजमीन के अंदर बैतुल मक़दिस में ही। ये फाइनल सब कुछ वहीं पे जमा होना है। आप तो देखें इस टाइम पूरी दुनिया ही बैतुल मक़दिस और शाम को ही डिस्कस कर रही है इस वक्त। तो शाम में बैतुल मक़दिस में उतरेंगे तो मुसलमानों का अमीर उन्हें कहेगा आप हमें नमाज पढ़ाएं, आप पैगंबर हैं। तो वो कहेंगे कि ये अल्लाह ने तुम्हें सआदत दी है कि तुम में से बाज के इमाम होते हैं। तो ईसा इब्न मरियम मुसलमानों के उस हुक्मरान, उस अमीर यानी इमाम मोहम्मद महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। चौथी हदीस सही मुस्लिम में है, उसमें भी शाम की इस जिहाद का जिक्र है और उसमें अल्फाज ये हैं कि ईसा इब्न मरियम जो है वो जब नाजिल होंगे वहां पे दज्जाल को कत्ल करेंगे और बाकी सारी चीजें। और उसमें यह है कि मुसलमानों का अमीर उनको दावत देगा और वो मुसलमानों की इमामत करवाएंगे। इस हदीस से यह पता चला कि ईसा इब्न मरियम भी मुसलमानों की इमामत करेंगे। बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि इमामत करेंगे से मुराद यह है कि वो मुसलमानों के अमीर होंगे और उनकी इजाजत से इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे। और बाज़ ने कहा कि नहीं, वो खुद पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें अल्फाज हैं कि वो इमामत करेंगे। तो ईसा इब्न मरियम भी बाद में नमाजें पढ़ाएंगे। ओवरऑल इमारत उनके सुपुर्द हो जाएगी। पांचवी हदीस के नबी इस्लाम ने फरमाया कि क़यामत की 10 निशानियां हैं, उनमें से दज्जाल का आना भी है, मगरिब से सूरज का निकलना भी है। पांचवी निशानी जो बयान फरमाई व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल करेंगे। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा के नाम के साथ खुद कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा ये दुरूद शरीफ मुहद्दिसीन ने नहीं घड़ा बल्कि नबी इस्लाम ने खुद तालीम फरमाया। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पहला वाला जो सवाल है उसके बारे में आप क्या जवाब देंगे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।